स्टार्ट। हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस पोदार कॉलेज का फर्स्ट यूनिट टेस्ट वाला पेपर। 25 मार्क का ये पेपर था और बहुत ही चैलेंजिंग पेपर था। आइए हम क्विकली इसको रन थ्रू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में लिखा है कि गिव वन वर्ड टर्म और फ्रेज। तो फर्स्ट वन है द कॉलम विच इज नॉट फिल्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द जर्नल। सो जर्नल बनाते वक्त हम लोग LF नाम का कॉलम पे कभी भी एंट्रीज करते ही नहीं है। सो फर्स्ट वन का आंसर इज LF, लेजर फोलियो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस स्पेंड बाय द सेलर ऑन सेंडिंग गुड्स टू कस्टमर। सेलर कस्टमर को गुड्स दे रहा है, मतलब गुड्स बिजनेस से जा रहा है और गुड्स जाने का टाइम पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज कैरेज आउटवर्ड या ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेट आउटवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। If the goods are being transported by road, we call it as carriage outward. If they are being transported by ship, rail or air, then it is freight outward. An expenditure which results in decrease of long-term liability. आपका long-term liability कम होता है तो वो जो खर्चा है, that खर्चा is called as a capital expenditure या also called as a capital payment. Okay, long-term liability में गिरावट आता है तो उसको capital expenditure बोलते हैं या capital payment करके बोलेंगे हम लोग। The account which is created when legal expenses are paid for acquiring patents, आप patents buy कर रहा है, real account है, the journal entry is patents account debit to cash, तो which account is created? तो answer is cash and patent account is debited. Okay, then state whether the following statements are true or false. The first one, no barter transactions is recorded in the books of accounts. The answer is false. आपको barter transaction को भी books में record करना ही पड़ेगा। Because what is the meaning of barter transaction? Something has been exchanged for something, मतलब आपने कुछ तो भी दिया और बदले में कुछ तो भी मिला, तो क्या गया और क्या मिला लिखना पड़ेगा ना अपने को। It has to be recorded, okay? Then the amount spent on repairs of an old machinery, then machinery account is debited. Again the answer is false. यहाँ पे clearly बोला है कि एक old machinery है, old machinery पे repairs का खर्चा is a revenue expenditure and repairs account को ही debit करना चाहिए। The journal entry is repairs account debit to cash and not machinery account debit to cash. Sale of old newspaper is credited to sales account. The answer is false. Old newspapers आपने बेचा तो old newspapers बेचेंगे तो वो goods नहीं है, तो goods नहीं है तो it cannot be credited to sales. You will credit either miscellaneous income या फिर sundry income account. Okay. Then let's move to the next important part जहाँ पे बोला है कि classify the following into personal, real and nominal accounts. The first one, machinery, it's an asset, it's a real account. Shop fittings मतलब ट्यूबलाइट का पट्टी, बल्ब का होल्डर, स्विच बोर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर रियल अकाउंट्स अगेन। जनरल रिजर्व इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट में से एक हिस्सा बिजनेस ने फ्यूचर के लिए रखा है, उसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। डिपॉजिट विद MSEB बोर्ड मतलब MSEB बोर्ड के पास आपका पैसा पड़ा है जो रिफंडेबल नेचर का है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका डेटर है। रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। Accrued interest, accrued means earned but not received, receivable मतलब सामने वाले से आपको पैसा लेना है, that's a personal account. Furniture is a real account. Unexpired insurance का मतलब होता है prepaid insurance and prepaid insurance is a personal account. Capital represents the businessman, so it's a personal account. Bills receivable is an asset, it's a real account. Purchases is an expense, so nominal account. R.A. Podar College, it's an institution, so it's a personal account. Okay. Then let's move to क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछा है। बहुत भयंकर ट्रांजैक्शन है इसमें। आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80, बैंक बैलेंस 120, फर्नीचर 60, मशीनरी 40। आउट ऑफ द फंड्स इंट्रोड्यूस 25% ऑफ द फंड्स वे बोरोड फ्रॉम मिस्टर जिमिन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने का एंड में लोन पे इंटरेस्ट पे करना है। ओके, सो द की वर्ड हियर इज आउट ऑफ टोटल फंड्स इंट्रोड्यूस्ड। तो धंधे में टोटल कैश कितना आया, तो कैश 80,000 है और बैंक बैलेंस 1,20,000 है, मतलब टोटल फंड्स इज 2 लाख। ये 2 लाख का 25%, तो 2 लाख का 25% इज 50,000 रुपीज। दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम मिस्टर जिमिन, मतलब 50,000 इज लोन एंड बचा हुआ अमाउंट इज कैपिटल। सो The journal entry of September 1 तारीख वाला transaction will appear like this. September 1 का एंट्री कैसा होगा? Cash debit 80,000. Debit what comes in? Bank debit 1,20,000. Debit the receiver.
Furniture debit 60,000, debit the receiver. Machinery account debit 40,000. Again, sorry, furniture debit, debit what comes in. Machinery account debit, debit what comes in. यहाँ पे आएगा 2. Loan from Jimin. So this will be 25% of 80,000 plus 1,20,000, which is 50,000. एंड बचा हुआ अमाउंट इज योर कैपिटल, जो आपका डेबिट माइनस क्रेडिट करके मिलेगा. तो डेबिट का आप सब चीज़ को ऐड किया 3 लाख आता है, माइनस क्रेडिट का 50. सो 2,50,000 इज योर कैपिटल. दिस वॉज सितंबर 1 तारीख का ट्रांजैक्शन. नाउ लेट्स मूव टू सितंबर 4 तारीख का ट्रांजैक्शन. सितंबर 4. सितंबर 4 में क्या बोला है? परचेज गुड्स ऑफ ₹80,000 फ्रॉम मिस्टर सुगा at 10% TD and 5% CD and 18% GST terms and issued a bearer check for 50% of the amount due. Issued मतलब क्या? gave. आपने चेक दिया. कौन सा चेक दिया? bearer चेक दिया. अभी आप बोलेगा सर bearer चेक का मतलब क्या होता है? See, a check looks like this. Okay? अब सपोज मैं ये चेक में ऐसा 2 लाइन ड्रॉ करता हूं और ये और bearer करके जो वर्ड्स इसको काट देता हूं, तो ऐसा वाला चेक को हम लोग बोलते हैं क्रॉस चेक. Okay, this is called as a cross check. And if I give a check to someone like this, जहाँ पे I don't draw these 2 lines and I don't cut the word or bearer, this is called as bearer check. अब इसका implication क्या है? Let's try to understand. अब अगर मैंने आपको क्रॉस चेक दिया तो आपको क्या करना पड़ता है? वो चेक लेके आपको आपके बैंक में जाना पड़ता है. यू टू पुट द चेक इन योर अकाउंट. फिर क्या होगा? मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा. दैट हैपेंस इन केस ऑफ अ क्रॉस चेक. सपोज आई गिव यू अ bearer चेक, तो व्हाट यू विल डू? यू विल नॉट गो टू योर बैंक, यू विल गो टू माई बैंक. मेरा अकाउंट जहां पर है उस बैंक में आप जाओगे, चेक दोगे कैश काउंटर पे, ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ bearer चेक. अभी अगर आपने चेक घुमा दिया, किसी और को ये चेक मिल गया, वो बंदा यही कार्यक्रम कर सकता है. ही कैन टेक द चेक, गो टू माई बैंक, शो द चेक एंड ही गेट्स मनी. दिस इज bearer चेक. एम आई क्लियर? तो किसको फर्क पड़ता है इससे? जिस बंदे को ये चेक मिल रहा है ना, उसको फर्क पड़ता है. जो बंदा चेक दे रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता. इफ आई गिव यू अ चेक, मैं आपको कौन सा भी चेक दूं, मैं bearer चेक दूं या क्रॉस चेक दूं, अल्टीमेटली मैंने आपको चेक दिया, मतलब मेरा तो बैंक से ही पैसा जाने वाला है. तो देने वाले को फर्क नहीं पड़ता. बट जो लेने वाला बंदा हैज टू थिंक कि मेरे को जो चेक मिला ये कौन सा चेक मिला. अगर क्रॉस चेक मिला मीन्स पैसा मेरे बैंक में ही आएगा, चॉइस ही नहीं है. तो क्रॉस चेक इज बैंक अकाउंट. bearer check मिला means it is equal to cash because I have to just go to सामने वाले का बैंक, show the check and I get cash. तो bearer check received is cash. ये बात याद रखना. मतलब लेने वाले को, जिसको चेक मिलता है ना, he has to think. देने वाला need not think. Okay? अगर आप ट्रांजैक्शन 2 पढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन 2 में क्या हुआ है? हम लोग ने गुड्स बाय किए है ना, हम लोग ने गुड्स परचेज किया है. सो परचेज किया है मीन्स हम लोग bearer check देने वाले हैं. तो हम अगर देने वाले हैं तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, पैसा तो हमारा बैंक से ही जाने वाला है. ठीक है? अभी हम पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं. तो कैलकुलेशन करेंगे. सो ग्रॉस प्राइस ऑफ द गुड्स इज 80,000. इसमें आप 10% टीडी काट लीजिए, 8,000. तो नेट प्राइस आ गया आपका 72,000. इस पे आप ऐड कर लीजिए CGST 9%, SGST 9%. तो 72,000 पे 9% कैलकुलेट करने पे
आपको 6480 मिलेगा। सो आपका टोटल पेएबल जो आता है जीएसटी को भी पकड़ के 84,960। अब क्या हुआ कि 50% के लिए हमने बैरर चेक इशू किया है, तो इसका 50% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50% इफ़ यू कैलकुलेट तो इट कम्स टू 42,480। ये हमने बैरर चेक दे दिया। तो बाकी का 50% हमने पे ही नहीं किया, तो बाकी का 50% के लिए सामने वाले का नाम आएगा, और सामने कौन है? सामने सुगा है। एंड जो हमने पे किया है उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक डिस्काउंट आ जाएगा, दूसरा बैंक। इवन दो इट्स अ बैरर चेक, इट इज स्टिल बैंक बिकॉज हम चेक दे रहे हैं। अभी सीडी का रेट आपका देखना चाहिए, तो सीडी का रेट इज 5%, तो 42,480 का 5% कैलकुलेट करने का, तो 42,480 इंटू 5% इफ यू कैलकुलेट, तो 2124 इज डिस्काउंट का फिगर, तो 40356 इज योर चेक का फिगर। ऑलराइट, अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस: परचेजर्स डेबिट 72,000, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव, टू सुगा। ये उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। फाइन, सो दिस कंप्लीट्स योर सितंबर 4 तारीख वाला ट्रांजैक्शन। अभी हम मूव ऑन करते हैं सितंबर का 7 तारीख वाला ट्रांजैक्शन में। तो 7 तारीख का ट्रांजैक्शन में वापस बहुत सारा कैलकुलेशन है। क्या बोला है उधर? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एट 10% PD। सो पहला अपने को 30,000 पे 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद सेल्स वैल्यू आएगा, सेल्स वैल्यू पे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। फिर CD भी है, बट CD एप्लीकेबल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। GST है 5%, जो 2.5% करके स्प्लिट हो जाएगा। और जिनको हमने माल बेचा और उसने क्या किया, इमीडिएटली इशूड अ क्रॉस चेक फॉर 1/4 अमाउंट एंड अ बैरर चेक फॉर 1/4 अमाउंट। फिर से बैरर चेक आया। अब देखो हमने गुड्स बेचा है, तो ये बार बैरर चेक अपने को मिलेगा, एंड बैरर चेक मिला मींस कैश मिला। आई बात समझ में? सो लेट्स डू द कैलकुलेशन फर्स्ट। तो पहला पार्ट इज द कैलकुलेशन, बिकॉज सबसे तकलीफ तो उधर ही होता है अपने को। तो पहले तो आपका जो बेसिक कॉस्ट है वो आपका हो गया 30,000। 30,000 पे सबसे पहले हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट 20% के हिसाब से। ये हो जाएगा 6,000, सो 36,000 हो गया ये। इसमें TD माइनस करेंगे हम लोग 10% के हिसाब से, 3600 माइनस हो जाएगा। तो सेल्स वैल्यू जो रहेगा आपका 32,400 हो जाएगा। ये आपका सेल्स वैल्यू है। अब इसका पेमेंट कैसा हो रहा है? तो इसका 1/4 अमाउंट जो है वो बैरर चेक से हो रहा है। तो 32,400 का 1/4 अमाउंट इज 8100, वो बैरर चेक है। और एक 1/4 अमाउंट जो है
ये आपका हो गया क्रॉस चेक। तो 1/4 प्लस 1/4 हाफ होता है, तो और एक हाफ बच गया, इसका पेमेंट हुआ ही नहीं, तो इसके लिए सामने वाले का नाम आएगा विच इज जिन। अब जो पे हुआ है वो दो पार्ट में टूटेगा, डिस्काउंट और बैरर चेक वाला पार्ट विल बी कैश, यहाँ पे डिस्काउंट और बैंक। सॉरी आई मिस द जीएसटी वाला पार्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक मिनट। तो सेल्स वैल्यू आने के बाद इसमें अपने को ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, CGST, टू 2.5%, SGST भी 2.5%, सो 810 GST आ जाएगा। टोटल अमाउंट रिसीवेबल GST को भी पकड़ के इस 34,020। इसका 1/4 इस क्रॉस चेक, इसका 1/4 इस बैरर चेक, और बचा हुआ हाफ के लिए सामने वाले का नाम आएगा, एंड सामने वाला कौन है, जिन। ठीक है। सो 34,020 का 25% कैलकुलेट करने पे 8505 क्रॉस चेक आता है, 8505 बैरर चेक आता है, एंड 17,010 इस जिन का अमाउंट। ये क्रॉस चेक और बैरर चेक वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड होएगा, ये होगा डिस्काउंट और बैंक, होगा डिस्काउंट और कैश। ठीक है। और आपका सीडी का रेट जो दिया हुआ है, सीडी का रेट इज 5%, तो 8505 पे 5% सीडी आप कैलकुलेट करोगे तो 425.25 आता है। तो 0.25 है तो 0.5 से कम है ना, उसको 425 ले लेने का। तो 8505 माइनस 425 करेंगे तो 8080 इज बैंक। उसी तरह इधर भी 425 8080 इज कैश। ठीक है। अभी आपका सेल्स इज 32,400, सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है, तो सेल्स क्रेडिट होएगा तो जीएसटी भी क्रेडिट होएगा, तो बाकी सब आपका डेबिट हो जाएगा, विच मीन्स योर जर्नल एंट्री शुड अपीयर लाइक दिस: बैंक डेबिट 8080, कैश अकाउंट डेबिट 8080, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 850, 425 प्लस 425, जिन अकाउंट डेबिट 17,010, टू सेल्स अकाउंट 32,400, to output CGST to output SGST। ठीक है। तो ये उसका जर्नल एंट्री होगा। फाइन। So this completes
योर 12 तारीख वाला 7 तारीख वाला ट्रांजैक्शन, अभी हम 12 तारीख वाला ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बोलते हैं मिस्टर जंगकुक। जंगकुक मतलब कौन? जो बिजनेसमैन है, जिसके बुक्स में हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं। सो जंगकुक यानी बिजनेसमैन सोल्ड इज पर्सनल 1000 शेयर्स ऑफ ONGC लिमिटेड, उसका फेस वैल्यू 10 है एट ₹30 एंड ट्रांसफर्ड 60% ऑफ द प्रोसीड्स टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखे? पर्सनल शेयर्स। पर्सनल शेयर्स का मतलब क्या? खुद का शेयर्स। तो बिजनेसमैन के पास खुद के कुछ शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। उसका फेस वैल्यू 10 है। अभी फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हेन यू बाय शेयर्स ना, यू गेट अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट, और वो डॉक्यूमेंट का फेस पे एक वैल्यू प्रिंटेड रहता है, उसका नाम है फेस वैल्यू। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। आपका एक्चुअल बाइंग या सेलिंग प्राइस कुछ और ही होता है। तो फेस वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है। वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है, 30 के भाव में आपने बेचा है, तो 30,000 रुपए में आपका शेयर्स बिका है। ये कौन सा शेयर्स है? पर्सनल शेयर्स है। तो एज सच बिजनेस तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। फिर भी बिजनेसमैन ने क्या किया? उसका 60% मतलब बेच के जो भी पैसा आया, अभी बेच के 30,000 आया था, 1000 शेयर इंटू 30 के हिसाब से, उसका 60% 18,000 रुपया उसने क्या किया? बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा किया। जिसका मतलब ये होता है कि वो खुद का पैसा बिजनेस में लाया, एंड खुद का पैसा बिजनेस में लाया मींस कैपिटल। तो थर्ड वाले का जर्नल एंट्री होता है, मतलब ये 12 तारीख वाला जर्नल एंट्री होगा, बैंक टू कैपिटल, एंड द अमाउंट इज 18,000 रुपीज। ओके, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो 60% ऑफ 1000 शेयर्स इंटू 30, समझा? सितंबर 12 तारीख हो गया, अभी 16 तारीख के पास जाते हैं। द बैरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम जिन इज एंडोस्ड टू जे होप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 8,500। एंडोस मतलब गिवन। मैंने क्या बोला? बैरर चेक मिला मीन्स कैश मिला। अब अगर मेरे को कैश मिला तो मैं कैश किसी को भी दे सकता है ना। बैरर चेक इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, नाम ही है ना बैरर, जिसके हाथ में चेक है वो उसका मालिक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। हमको मिला इसके लिए ऐसा हो रहा है। हमने दिया होता तो हमारे पास ये चॉइस होता ही नहीं है ना। मिलने वाले को कैश होता है, और हमको तो चेक मिला था, क्या डेट को मिला था? 7 तारीख को बैरर चेक मिला था। अच्छा, 7 तारीख को जो बैरर चेक मिला था वो कितना रुपए का था? आइए हम ढूंढते हैं। तो 7 तारीख को ये रहा बैरर चेक, और बैरर चेक कितना रुपए का है? तो 8080 का बैरर चेक था वो। ये बैरर चेक हमने दे दिया, यानी ये कैश हमने दे दिया। किसको दिया ये कैश? हमने जिनको जे होप को दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 8,500। मतलब 8,500 का सेटलमेंट हुआ 8080 देके, तो डिफरेंस अमाउंट इज डिस्काउंट। सो द जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन विल अपीयर लाइक दिस। हम लोग ये शेयर्स जे होप को दे रहे हैं, तो जे होप अकाउंट डेबिट 8,500 टू कैश। It was 8080, right? Yeah, it was 8080. And to discount received 420. ये उसका जर्नल एंट्री होगा। हमने खुद का चेक नहीं दिया, हमने पासिंग द पार्सल किया। जो चेक हमें मिला था वो चेक हमने दे दिया। कहाँ से मालूम पड़ा ये वर्ड? एंडोर्स्ड मीन्स वी डिड पासिंग द पार्सल। खुद का चेक दिया होता, चेकबुक निकाल के साइन करके दिया होता तो टू बैंक किया था, बट हमने खुद का चेक नहीं दिया। जो चेक हमें जिन से मिला था वो चेक हमने जे होप को दे दिया। तो जब मिला तभी कैश आया बोल के लिखा, तो जाने का टाइम पे भी कैश गया बोल के लिखने का। क्लियर? तो ये हो गया सितंबर 16 तारीख वाला ट्रांजैक्शन। अभी हम करते हैं सितंबर 18 वाला ट्रांजैक्शन। तो सितंबर 18 को क्या बोल रहा है? सो 18 को लिखा है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ 2 चेक्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द करंट अकाउंट। चेक मिला और डिपॉजिट भी हो गया, मतलब बैंक डेबिट इज पक्का। कौन सा भी चेक रहने दो, बैंक डेबिट इज पक्का। क्यों?
बिकॉज चेक रिसीव भी हो गया और डिपॉजिट भी हो गया बोलते हैं ना, इसके लिए बैंक डेबिट इज पक्का बिकॉज बैंक इज द रिसीवर। तो बेरर चेक मिला तो भी हम बैंक डेबिट करेंगे, कैश सेल्स के लिए भी हम बैंक डेबिट करेंगे बिकॉज चेक ही मिला है अपने को। आई बात समझ में? अच्छा, अभी फर्स्ट वाला जो है, ए वाला जो है, बेरर चेक मिला, किससे मिला? अरविंद से मिला, फॉर गुड्स सोल्ड इन द लास्ट मंथ। मतलब सेल्स पिछले महीने में हो गया। इसका मतलब पिछले महीने में आपने उधार पे माल बेचा था, पिछले महीने में आपने एंट्री किया था अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आज आपको अरविंद से चेक मिल रहा है तो आज आप एंट्री करोगे बैंक टू अरविंद। अंडरस्टूड? या अरविंद या जो भी नाम है, एवीसी, मिस्टर एवीसी या कुछ नाम दिख रहा है अजीब। सो इट इज बैंक डेबिट टू एवीसी 80,000, ये पहला वाला है। अभी आप बोलेगा सर आपने तो कुछ देर पहला बोला था कि बेरर चेक मिला तो कैश मिला, तो कैश डेबिट करना चाहिए ना आपने। मैं क्यों नहीं किया? बिकॉज ट्रांजैक्शन के टॉप में क्या लिखा है? क्या लिखा है? रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द करंट अकाउंट। आपने को चेक मिला और ताबड़तोड़ करंट अकाउंट में डिपॉजिट भी हो गया, इसके लिए मैंने बैंक को डेबिट किया। ऐसा अगर नहीं बोला होता ना तो मां कसम मैं वो बेरर चेक मिला उसको कैश डेबिट ही किया होता। ओके, देन बी वाला का जर्नल एंट्री इज बैंक टू सेल्स 12,000। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सितंबर 23 को क्या बोला है? वो बोलता है इश्यूड द फॉलोइंग चेक्स फ्रॉम करंट अकाउंट। इश्यू का मतलब क्या? चेकबुक निकाला, साइन किया और सामने वाले को चेक्स दिया। मतलब पैसा बैंक से जाने वाला है, मेरा बैंक देने वाला है सामने वाले को पैसा, तो बैंक गिवर है, बैंक क्रेडिट इज पक्का। तो डेबिट कौन कौन होएगा? तो लाइट बिल के लिए चेक दिया तो इलेक्ट्रिक चार्जेस टू बैंक होएगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भरा, बट इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। ओके, सो 23 वाले में ए पार्ट का जो जर्नल एंट्री है वो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू बैंक, और बी पार्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से हो गया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये हो गया 23 वाला दो ट्रांजैक्शंस। अभी हम बढ़ते हैं 27 की ओर। सो 27 को देखते हैं कि क्या चैलेंज एग्जामिनर ने फेंका है हमारे सामने। वो बोलते हैं मिस्टर जंग कुक, मतलब बिजनेसमैन जिसके बुक्स में हम लोग है। सो जंग कुक प्लेस्ड एन ऑर्डर विद मिस्टर RM for goods of rupees 20,000 at 10% TD and 12% GST and issued a check for 20% of total amount due including GST as an advance। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली बात तो मिस्टर जंग कुक ने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया, करेक्ट। तो ये जो ऑर्डर प्लेस किया फॉर गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 एट 10% TD एंड 12% GST है ना, ये वाला पार्ट का तो एक्चुअल में एंट्री आएगा ही नहीं, बिकॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन आगे लिखा है कि चेक इश्यू कर दिया एज एन एडवांस, तो एडवांस के तौर पे चेक दे दिया ना, तो वो चेक वाला पार्ट का एंट्री आएगा, और चेक वाला पार्ट के लिए हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। सो आइए मैं पहले कैलकुलेशंस करके दे देता हूं आपको। सो आपका जो ग्रॉस प्राइस है ये आपका 20,000 है, इसमें आप पहले 10% TD कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2,000 रुपीज़ आएगा, वो माइनस कर देने का। तो 2,000 माइनस करने के बाद आपको जो अमाउंट आएगा ये परचेजर्स का फिगर होगा 18,000। ओके, इस पे आप ऐड कर दोगे 6% CGST और 6% SGST भी ऐड कर देने का। सो 18,000 का
6% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1080 इज CGST, 1080 इज SGST. सो टोटल पेएबल जो आता है is 20160, 80 टोटल पेएबल इज 20160. ओके, अब ये 20160 जो टोटल पेएबल है इसका जो है 20% हमने अभी पे कर दिया. सो 20160 का 20% कैलकुलेट करने का तो 4032 आता है. तो 4032 का हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, हमने चेक दिया. हमने चेक किसको दिया? तो RM को दिया. तो RM अकाउंट डेबिट 4032 टू बैंक 4032. वी कैन इवन राइट एडवांस टू RM अकाउंट डेबिट टू बैंक, इवन दैट इज पॉसिबल. मैंने लिख दिया RM टू बैंक, RM रिसीवर डेबिट एंड बैंक गिवर क्रेडिट. ठीक है. नाउ 29th वाला ट्रांजैक्शन में बहुत मेहनत करवा रहा है एग्जामिनर. वो बोलते हैं 50% ऑफ द टोटल कैश अवेलेबल डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कैश अवेलेबल कितना है वो देखना पड़ेगा, और कैश अवेलेबल के लिए आपको आपके ऊपर के जर्नल एंट्रीज देखने पड़ेंगे. और देखते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कैश रियल अकाउंट है, कैश डेबिट हुआ है मतलब कैश आया है, और कैश क्रेडिट हुआ है मतलब कैश गया है. ओके, सो आइए हम देखते जाते हैं कि अपना जर्नल एंट्रीज में कैश कहाँ कहाँ पर है. मैं स्टार्टिंग से देखते आ रहा हूँ. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री में कैश डेबिट है 80,000 रुपया. इसका मतलब 80,000 कैश आया है. ओके, उसके बाद कैश कहाँ पर है? सेकेंड वाला जर्नल एंट्री में कैश नहीं दिख रहा है मेरे को. थर्ड वाला जर्नल एंट्री में यस कैश वापस डेबिट है, मतलब वापस पैसा आया है. तो 80,000 पहले था प्लस 8080 हो गया. सो 88,080 कैश डेबिट हुआ है अभी तक. बाद में बैंक है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है तो माइनस कर लेने का 8080 को. सो वी आर बैक टू 80. इसके बाद कैश 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 कैश, कोई भी जर्नल एंट्री में इसके पास कैश है ही नहीं. इसका मतलब आपके पास जो कैश है वो 80,000 है, और 80,000 का आधा करने का तो 40,000 हमने कैश बैंक में जमा कर दिया. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, अभी अमाउंट कैसे आया देखो. 50% ऑफ फर्स्ट जर्नल एंट्री का 80,000 प्लस आपका थर्ड जर्नल एंट्री का 8080 जो कैश डेबिट हुआ है, माइनस आपका आगे का जर्नल एंट्री में 8080 माइनस हुआ है. ये करके जो 50% आया तो वो उसका अमाउंट है 40,000. ओके, 80,000 प्लस 8080 माइनस 8080 उसका 50% बैंक टू कैश. देन 30 तारीख को बोला है कि RM ने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर. तो 27 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था, उसका तो एंट्री हमने किया नहीं, खाली एडवांस पेमेंट का एंट्री किया था. आज RM ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया यानी हम लोग ने बाय किया, तो उसका एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट. उसका कैलकुलेशन रेडी है अपना. सो परचेज अकाउंट डेबिट इज 18,000. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1080. इनपुट HD अकाउंट डेबिट 1080 टू RM अकाउंट 20160. ऐसा एंट्री करने का. अंडरस्टूड. अभी देखने वाली बात देखो क्या है कि हमने यहाँ पे RM को क्रेडिट किया 403 डेबिट किया 4032 से, और यहाँ पे हमने RM को क्रेडिट किया 20160 से. तो 20160 माइनस आप करेगा 4032 इज द नेट अमाउंट विच इज पेएबल टू RM. आई बात समझ में? तो अपने आप नेट अमाउंट के लिए RM अपना क्रेडिटर दिखेगा.
So this was your Podar College का paper का discussion. I hope this video was very useful to you. For many more interesting videos like this, stay tuned to our YouTube channel Mensa Commerce Classes. Thank you very much everyone. Bye.